اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين۔ ابن زیاد نے گلیوں میں اعلان کروانے لگا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ قاضی شریح کا بیٹا اسد علی اصبر دونوں صاحبزادوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو پتہ چلا کہ کارواں کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر اس راستے پر چلا، کچھ دور گئے تو گردے کارواں نظر آئی۔ اسد بن شریح نے کہا، بھائی اور گردائی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے، تم دوڑ پڑو، جلد ہی تم اس قافلے سے جا ملوگے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ چھوٹے بھائی ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چھے گیا تھا، تکلیف کی وجہ سے وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بڑا بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ یہ پھول سے یتیم بچے عالم تھائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک میں ان کے متعلق یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بچوں کو سیاہ کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ شہزادے یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹھڑی دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی کوٹھڑی ہے؟ مدینے میں تو ہم نے ایسی کوٹھڑی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گویا وہ معصوم جیل کے تصور سے ہی ناشنا تھے۔ اداس اور نمکین ایک دوسرے سے چمٹ کر اس کالی کوٹھڑی میں بیٹھ گئے۔ جیل کا دارد مشکور نامی ایک پرہیزگار اور محب اہل بیت شخص تھا۔ جب اس سے ان کی مظلومیت دیکھی نہ گئی تو چپکے سے بچوں کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا کہ شہزادوں میں بھی دل میں تمہارے خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور چھپ چھپا کر قادسیہ پہنچ جاؤ، وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے، اس سے ملنا اور میری انگوٹھی دکھا کر اپنا تعارف پیش کرنا اور مدینہ منورہ پہنچانے کی فرمائش کرنا، وہ تمہیں بحافظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر قادسیہ کہاں ہے؟ رات بھر چلتے رہے مگر قادسیہ نہ آیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ کوفہ کے مضافات میں ہی گھوم پھر رہے ہیں، تو دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک خشک درخت کا بنتا ہے جو کہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ وہ اس ہول میں چھپ گئے کہ دن تو یہاں گزارے، رات آنے پر دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد درخت کے قریب بنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر ان معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ بچے ہمیشہ سچ بولنے کے عادی تھے، بولے کہ مسلم بن عقیل ہمارے بابا تھے جو شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بچے ہچکیاں لینے لگے۔ وہ لونڈی بولی، ساجزہ دغم نہ کرو، میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتی ہے، فکر نہ کرو اور میرے ساتھ چلو۔ کنیز نے ان شہزادوں کو اپنی مالکہ کے سامنے پیش کیا اور تمام واقعہ سنایا۔ اس خاتون کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے اس خوشی میں کنیز کو آزاد کر دیا، شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی، انہیں نہلایا اور کھانا کھلایا، ان کی داستان غم سن کر آنسو بہائے اور انہیں ہر طرح سے تسلی دی۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی کہ مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس نے مشکور کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے پر ان مسلم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مشکور نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تو مجھ سے نہ ڈرا؟ مشکور نے کہا، جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔
इब्ने जियाद ने कहा, इनको रिहा करने से तुझे क्या मिला? मशकूर ने जवाब दिया कि इन बच्चों को शहीद कराने में तो मुझे कुछ ना मिला, मगर अपने इस अमल के सबब से मुझे उनके जद्दे आला हमसे रोज़े क़यामत शफाअत की उम्मीद है। वो मेरी शफाअत फरमाएंगे, जबकि तू इस दौलत से महरूम रहेगा। इस पर इब्ने जियाद गजबनाक हो गया और बोला कि मैं अभी तुझे इसकी सजा दूंगा। मशकूर ने कहा कि मेरी 1000 जाने भी हों तो भी वो आले नबी मीर पर कुर्बान है। इब्ने जियाद ने जल्लाद को हुक्म दिया कि उसे इतने कोड़े मारो कि ये मर जाए और बाद में इसका सरपंच से जुदा कर दो। उधर वो नेक दिल खातून दिन भर दिलो जान से बच्चों की खिदमत और दिलजोई में मसरूफ रही। रात को वो उनको एक अलहदा कमरे में मिलाकर आई थी कि इसका शौहर हारिस आ गया। खातून ने पूछा, आज सारा दिन तुम कहाँ रहे कि इतनी देर से आए हो? कहने लगा कि सुबह में अमीर कूफा इब्ने ज़ियाद के पास गया था। वहां मुझे मालूम हुआ कि दारोगा जेल मशकूर ने पर उन मुस्लिम को कैद से रहा कर दिया है और अमीर ने ऐलान किया है कि जो कोई उनको पकड़ कर लाएगा या उनकी खबर देगा, इसको खोड़ा लिबास से फाखिरा और बहुत सा इनामो आराम दिया जाएगा। बहुत से लोग उनकी तलाश में निकले, मैं भी उन्हीं की तलाश में इधर उधर सरगर्दा रहा। खातून ने कहा, ए बंदाए खुदा, अल्लाह से डर, तुझे फर्जंदाने रसूल से क्या काम? हारिस कहने लगा, तू खामोश रह, तुझे नहीं मालूम कि इब्ने ज़ियाद ने घोड़ा लिबास से फाखिरा और बहुत सा इनामो आराम इस शख्स को देने का वादा किया है जो कोई उन बच्चों को उसके पास पहुंचाए या उन बच्चों के बारे में खबर दे। खातून ने कहा, किस कदर बदबख्त हैं वो लोग जो दुनिया के मालो दौलत की खातिर उन फर्जंदाने रसूल को दुश्मन के हवाले करने की जुस्तजू करने में लगे। हे, हारिस ने कहा, तुझे इन बातों से क्या ताल्लुक? तू खाना ला। औरत ने खाना ला कर दिया और वो खाना खाकर आराम करने लगा। रात को बड़े भाई मोहम्मद बिन मुस्लिम ने एक ख्वाब देखा कि हमारे अब्बा जान रसूलुल्लाह अलैह, हजरत अली, हजरत फातिमता ज़हरा और हजरत हसन मुज्तबी के हमराह बहिश्त बरी में मिल रहे हैं कि अचानक हुजूर अकरम में हम दोनों की तरफ देखकर हमारे अब्बा जान से फरमाया कि मुस्लिम, तुम चले आए हो और अन दोनों बच्चों को जालिमों में छोड़ आए हो। अब्बा जान ने हमारी तरफ देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल मेरे ये बच्चे भी आने वाले हैं। ये सुनकर छोटे भाई ने बड़े भाई के मना पर अपना चेहरा रखकर रोना शुरू कर दिया। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर उस जालिम हारिस की आंख खुल गई। उसने अपनी बीवी को जगाया और पूछा कि ये कुन के रोने की आवाज है। औरत बेचारी सम गई और कुछ ना जवाब दिया। हारिस ने उठकर चिराग जलाया और उस कमरे की तरफ गया जहां से रोने की आवाज आ रही थी। करे में दाखिल हुआ तो देखा कि 2 बच्चे हैं। हारिस ने पूछा कि तुम कौन हो? बच्चों ने हिचकियां लेते हुए जवाब दिया कि मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद है। कहने लगा कि ताज्जुब है, मैं सारा दिन तुम्हें तलाश करता रहा और तुम हो कि मेरे ही घर में मौजूद हो। ये सुनकर बच्चे सम गए। हारिस की बीवी ने जब अपने शौहर की ये संग दिली और बेरहमी देखी तो उसने अपने शौहर के कदमों पर सर रख दिया और कहने लगी कि उन कयमों पर तरस खाओ। मगर हारिस ने कहा, अगर तू अपनी जान की खैर चाहती है तो खामोश रो। ये कहकर उसने कमरे का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया ताकि उसकी बीवी बच्चों को कहीं और मुंतकल ना कर दे। वहां गए। जब सुबह हुई तो हारिस ने तलवार हाथ में पकड़ी और बच्चों को अपने हमराह लेकर चलने लगा। जब औरत ने मंजर देखा तो उससे रहा न गया। वो नंगे पांव पीछे दौड़ी और अपने खावंद से कहने लगी कि खुदा से डर और इन कीमों पर तरस खा। उस पर अपनी बीवी की मिन्नत समाजत का कुछ असर न हुआ, बल्कि वो उसको मारने दौड़ा। इसी असना में हारिस के एक गुलाम को, जो कि उसके बेटे का रजाई भाई भी था, मालूम हुआ तो वो भी पीछे दौड़ा। हारिस ने उसे देखा तो कहने लगा कि मुमकिन है इन बच्चों को हमसे कोई छीन ले और इनामो इकराम खुद ले जाए, लिहाजा ये तलवार लो और इनके सर तन से जुदा कर दो। जब अहले कूफा इनको देखेंगे तो शोरो गुना करके इनको मुझसे छुड़ा लेंगे और मेरी मेहनत जाया जाएगी। आखिर वो जालिम तलवार लेकर बच्चों को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा।
ये देखकर उसकी बीवी उसकी राह में हायल हो गई। उसने अपनी बीवी पर तलवार का वार किया। बीवी घायल होकर गिरी और तड़पने लगी तो मां को तड़पता देखकर बेटा भी आगे बढ़ा और बाप के रस्ते की दीवार बन गया। जालिम बाप ने लालच में अंधे होकर बेटे पर भी तलवार का वार करके उसे मौत की नींद सिला दिया। मां ने जब अपनी आंखों के सामने बेटे को कत्ल होते देखा तो उसका कलेजा फट गया और वो भी राही जन्नत हुई। फिर वो जालिम हारिस उन मासूम बच्चों की तरफ बढ़ा और पहले बड़े भाई और फिर छोटे भाई का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उस जालिम ने उन मासूम बच्चों को शहीद कर दिया तो सर काट कर लाए कहीं फेंक दिए और सर एक थैले में डालकर इब्ने ज़ियाद के दरबार की तरफ चला। दोपहर के वक्त उसने कसरे अमारत पहुंचकर थैला इब्ने ज़ियाद के सामने रख दिया। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, इसमें क्या है? उसने कहा, इसमें तेरे दुश्मनों के सर हैं। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये दुश्मन कौन है? हारिस कहने लगा, फर्जंदान मुस्लिम बिन अकील। इब्ने ज़ियाद गज़बनाक होकर करे, तूने किससे पूछकर इनको कत्ल किया है? बदबख्त अमी ने तो यजीद को लिखकर भेजा है कि अगर हुक्म हो तो इनको जिंदा भेज दूं। उसने जिंदा भेजने का हुक्म दे दिया तो मैं क्या करूंगा? तो इनको मेरे पास जिंदा क्यों नहीं लाया? हारिस कहने लगा कि मुझे अंदेशा था कि अहले कूफा शोरो गौगा करके इनको मुझसे छीन लेंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तुझे ये अंदेशा था तो तू उन्हें किसी महफूज मकाम पर ठहराकर मुझे इत्तला कर देता, मैं खुद मंगवा लेता। तूने मेरे हुक्म के बगैर उनको क्यों कत्ल किया है? तुम्हें इस हुक्मदूली पर सजा मिलेगी। चुनांचे इब्ने ज़ियाद ने मुकाबिल नामी जल्लाद को इस शख्स के कत्ल का हुक्म दिया और जल्लाद ने हारिस का सर तन से जुदा कर दिया। अगर हालात साजगार हों, जब्र जुल्म और कुफ्र की ताकतों का सफाया आसानी से किया जा सकता हो, तो इन हालात में हर छोटे बड़े और हर कलमा गो पर इस जुल्म के खिलाफ मैदान कारजार में निकल आना फर्ज और वाजिब हो जाता है। उस वक्त किसी शख्स के लिए सिवाय किसी शरई मजबूरी के कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन जब हालात नासाजगार हों, असलहा व अस्करी कुव्वत साथ ना हो, बातिल ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुनज़्ज़म व कवी तर हो, तो ऐसे हालात में शरीयत ने उम्मत मुस्लिमा को दो रास्ते अता किए हैं। एक ये है कि वो रुखसत पर अमल करे, गोशा नशीन हो जाए, चुपके से लानत मलामत करे और दिल से बुरा जाने। दूसरी तरफ इमाम आली मकाम तवक्कुल खुदा कूफा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सफाह के मुकाम पर अरब के मशहूर शायर फरजदक से आपकी मुलाकात हुई। वो कूफा से आ रहा था। फरजदक ने आपको सलाम किया और दुआ देते हुए कहा कि अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी करे और आपको वो चीज़ अता फरमाए जिसके आप तलबगार हैं। हजरत इमाम हुसैन बुरचूर ने पूछा कि तुम्हारे पीछे लोगों का क्या हाल है? इसने कहा, लोगों के दिल तो आपके साथ हैं, मगर उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ है। ताहम पज़ाए इलाही आसमान से नाजिल होती है और अल्लाह जो चाहता है करता है। आपने फरमाया, पीसते तरीक तूने सच किया। बेशक पहले भी अल्लाह ही के हाथ में अम्र था और बाद में भी उसके हाथ में इख्तियार है। वो जो चाहता है करता है। हमारे रब की हर रोज नई शान है। अगर अज़ाए उठी रही है, जो हम चाहते हैं तो हम अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं और शुक्र अदा करने पर वही हमारा मददगार है। और अगर क़ज़ाए इलाही हमारी उम्मीद के खिलाफ है, तो जिस शख्स की नीयत सालेह हो और वो मुत्तकी हो तो वो इसकी शिकायत नहीं करता। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी सवारी को एड़ लगाई और अस्सलामु अलैकुम कहकर दोनों एक दूसरे से रुखसत हो गए। फरजदक से मुलाकात के बाद काफिला हुसैनी आगे बढ़ा तो आपके भांजे हजरत मुन मोहम्मद अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर का खत लेकर पहुंच गए। खत में लिखा था, मैं खुदा के नाम पर आपसे इल्तजा करता हूं कि मेरा यह खत देखते ही आप वापस लौट आए। जो सफर आपने इख्तियार किया है, इसमें मुझे आपकी हलाकत और आपके अहले बैत की बर्बादी का खौफ है। आज अगर आप हलाक हो गए तो इस्लाम का नूर बुझ जाएगा। आप हिदायत याफ्तों के रहनुमा और अहले ईमान की उम्मीद है। आप सफर में सवात ना करें। इस खत के पीछे मैं खुद आ रहा हूं। वस्सलाम। किस? हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर ने अपने बच्चों के हाथ ये खत रवाना करके खुद अमीर मक्का उमरो बिन सईद से मुलाकात की और उसे कहा कि हुसैन को एक खत भेज दे
जिसमें उन्हें अमान देने और नेकी व एहसान करने का वादा हो। नीज खत में उन्हें वापस आने की दरखास्त की गई हो। मुमकिन है इस तरह वो मुतमईन होकर वापस आ जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर और यहया खत लेकर रवाना हो गए, हत्ता कि हजरत इमाम हुसैन से जा मिले और उन्हें ये खत पढ़ कर सुनाया। हजरत इमाम हुसैन ने वापस आने से इनकार किया। मिली हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर हजरत इमाम हुसैन को अभी तक नहीं थी, लिजा आपने दादी जीरमा के मकाम अनहाजर से कैस बिन मुसहर सईदाविया अपने रजाई भाई अब्दुल्ला बिन अल-कतर को अहले कूफा के नाम खत देकर भेजा, जिसमें आपने लिखा, मुझे मुस्लिम बिन अकील का खत मिल गया है, जिसमें उन्होंने हमारे मुतल्लिक हुसन राय और मारी मदद व हक तलबी के लिए तुम्हारे इज्तिमा की खबर दी है। अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाब फरमाए और तुम्हें इस अमानत पर अजर अजीम अता फरमाए। मैं 8 ज़ीहल्जा बरोज मंगल यौम तरविया को के से रवाना हो चुका हूं। जब तुम्हारे पास मेरा कासिद पहुंचे तो महल्ली तौर पर अपने काम के लिए कोशिशें बढ़ा दें। इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे आगे जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़ैनुल आबिदीन वस्सलाम।